Today questions, word problems, next video on word problems, maxima minima. Taking question number 23 from NCERT books, page number 233. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. We may consider as smaller, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे. Volume of largest cone, sphere of radius R is constant. Let us draw the figures. First let us draw a sphere of radius R, and this is a cone inscribed in a sphere. ABC is a cone. This is the height of the cone. This is the center of the sphere, and this will be taken as smaller. If this point is D, so BD is equal to R. You may take capital R, that is radius of cone. If this angle is theta, let us assume this angle is theta, so BD can be written as R cos theta. Height AD can be written as OA plus OD, height of the cone. OA is nothing, that is your small r. OD is R sin theta. It means R into 1 plus sin theta. This is the height of the cone, that is number 2. Now volume of the cone is 1/3 pi r square. This height may be represented as h, may be taken capital H. So 1/3 pi r square means r square cos square theta. H means r into 1 plus sin theta. So 1/3 pi by 3 r cube cos square theta into 1 plus sin theta. This is third. This is called as volume of the cone. Theta is your variable. R is your constant. Let us differentiate dv by d theta. क्योंकि जब एक वेरिएबल्स होता तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पाई आर क्यूब बाय 3 आउटसाइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा. 1 का डेरिवेटिव 0, साइन थीटा का यही होगा. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ. कॉस थीटा कॉमन माइनस 2 साइन थीटा into 1 plus sin theta. This is cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. Cos square theta आएगा, cos square theta को आप लिख सकते हैं 1 minus sin square theta. अब इस आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. तो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा. तो पाई आर क्यूब बाय 3 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 3 साइन थीटा. लेट dv by d theta equal to 0. This implies cos theta cannot be equal to 0.
sin theta plus 1 cannot be equal to 0. This implies sin theta is equal to 1 by 3. Now from third ये है वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज पाई आर क्यूब बाय 3 cos square theta. If you make a right angle triangle, if this angle is theta and it is given sin theta is 1 by 3, it means this side is 3, this is 1, this is 9 minus 1, that is under root of 8. So cos square theta will be 8 by 9 into 1 plus 1 by 3. 8 by 27 into 4 by 3 pi r cube. This by 8 by 27 of the volume of the sphere. So this is question number 23. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से ले सकते हैं डी स्केयर वी बाई डी थीटा स्केयर पाई आर क्यूब बाई 3 कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, बाकी की दोनों टर्म एज रख लो, प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू -3 कॉस थीटा। जब साइन थीटा 1/3 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। दिस इम्प्लाई द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जिन लोगों के 100 मार्क्स नहीं आते वो सेकंड और डेरिवेटिव में लापरवाही करते हैं, इसलिए आपको करना। एग्जामिनेशन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए व्हेन कॉन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो सब में अप्लाई हो जाएगा। इस कैलकुलेशन पे ध्यान देना। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, कॉस थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा भी कॉमन आ गया, तो -2 साइन थीटा इंटू दिस। इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन पकड़ना। और कई बार ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में भी आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड ये है, एच को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इसी फिगर में सेम सोल्यूशन है, यू हैव नथिंग टू डू। ये एच है, ये कैपिटल आ रहा है कौन का। अब मैक्सिमम वॉल्यूम, वही वॉल्यूम को मैक्सिमम किया है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस मैंने आर ही ली हुई है, इज 4r/3। इसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करो तो प्रूव हो गया। साइन थीटा आपने 1/3 निकाला है, तो 1 प्लस 1/3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू 4r/3। इसमें बस फ्रॉम सेकंड से रिजल्ट आ जाएगा कि h इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1/3, तो 4/3 ऑफ r। जैसे ये यहाँ पे फ्रॉम थर्ड से आंसर लिया, इसमें फ्रॉम थर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ करेंगे सिर्फ h से आंसर आ जाए। कई बार रेडियस से भी आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चा इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेगा पेपर में, सिर्फ ये सोच के प्रैक्टिस करे कि मुझे इंस्क्राइब्ड कौन करना है स्फीयर के अंदर। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन निकालेगा तो एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी है 7-8 क्वेश्चनों के लिए।
अगर जो नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करेगा तो वो सब हर क्वेश्चन के सोल्यूशन चेंज हो जाते हैं। चलो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। show that the height of the cylinder of maximum volume which can be inscribed in a sphere। देखो अब स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर इस टाइप से आएगा, जो सिलेंडर की हाइट होगी, जो मैं सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच लूँगा वो स्फीयर को टच नहीं करेगी, ये सेंटर होगा, ये स्फीयर की रेडियस आर है, इंस्क्राइब स्मॉल आर है, इसका मतलब सिलेंडर की रेडियस में कैपिटल आर। जब आप फिगर पे ये चीज़ें लिख देते हैं तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और फिगर पे लिखने में नज़र भी ज़्यादा आती है और टाइम भी कम लगता है। अब वही आप इस एंगल को थीटा ले लीजिए, तो मैं कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल आर कॉस थीटा आ जाएगा। कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंडर, ये ई और एफ ले लें, जिसको आप ई एफ कहेंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओ ई कह दें, 2r साइन थीटा आ जाएगा। ट्राइंगल से देख लीजिए ना, ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल्स ओ ए ई, और जब मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ तो साथ वाली साइड ये बेस और ये ऑपोजिट साइड है, इस तरीके से करिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम्स, वॉल्यूम मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एच का मतलब 2r साइन थीटा। वही इसको नंबर 1 कह लें, किसी क्वेश्चन में ये निकालना है, किसी में ये निकालना है, किसी में ये निकालना है, थर्ड अगले स्टेप में कह लेंगे। 2 जो कांस्टेंट है बाहर, 2 पाई आर क्यूब कांस्टेंट, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ से डी वी बाई डी थीटा, क्योंकि आर तो आपका कांस्टेंट है, 2 पाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा विद माइनस साइन प्लस कॉस क्यूब थीटा, 2 पाई आर क्यूब कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेट डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा तो 0 नहीं होगा बिकॉज थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, बट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इम्प्लाइड टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इम्प्लाइड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अगर जो मैं यहाँ ट्राइंगल्स बना लूँ, ये एंगल थीटा ले लूँ, ये 1 ले लूँ और ये √2, बाय पाइथागोरस ये √3 हो जाएगा। आपने प्रूव क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम सेकेंड, हाइट h विद हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज 2r, तो ठीक है कांस्टेंट है, साइन थीटा आएगा 1/√3, इसका मतलब आ गया 2r/√3, हैंस प्रूव्ड। मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम थर्ड निकालो, फ्रॉम थर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल 2 पाई आर क्यूब, तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 आएगा, ट्राइंगल को देखते रहो, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा
1/√3 आएगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3√3 पाई आर क्यूब, ये मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पे, डी स्केयर वाई बाय डी थीटा स्केयर 2 पाई आर क्यूब, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा प्लस 2 पाई आर क्यूब कॉस थीटा एज इट इज माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब ये टर्म तो जीरो हो जाएगी जब टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी जीरो क्योंकि यहीं से आता है, दिस विल बी नेगेटिव, दिस इम्प्लाई द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ से पता लगता है, क्योंकि हम इस टर्म को जब जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाती है, इसका मतलब ये वैल्यू तो जीरो है, ये तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नेगेटिव है। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है और डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा होता है। बस इसकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जो स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ये सम इजी हो जाएगा। इसी मेथड से प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि आप जैसे बुक्स के एग्जाम्पल पढ़ते हो तो फिर एग्जाम्पल फिर कन्फ्यूजन है। मैं इतने सॉल्यूशन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप इनके प्रॉपरली करते रहें। अब मेरे पास एक ही क्वेश्चन रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 रह गया। ये पेज नंबर 233 का है, वही सेम एक्सरसाइज चल रही है अभी। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। ये जितने वॉल्यूम के सम होते हैं ना सब खतरनाक होते हैं, कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये स्लांट हाइट है L, ये रेडियस R है और ये आपका हाइट H है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3, इसका मतलब साइन अल्फा आपको 1/3 मिल गया और साइन अल्फा का मतलब R/L 1/3 है। ये बातें छोटी छोटी नोट कर लिया करो। गिवन सरफेस एरिया है S जो है वो सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये गिवन में, इसका मतलब S कांस्टेंट है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो इसको S माइनस पाई आर स्क्वायर को पाई आर एल को हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्क्वेयरिंग S स्क्वायर माइनस 2S पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। S स्क्वायर माइनस 2S पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज H स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, S कॉमन पाई माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको नंबर 2 कह दो। ये H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ H है, इसका मतलब इसका भी स्क्वेयरिंग कर लो। कल भी मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि अगर जो आपका V स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो V भी मैक्सिमम होगा। इफ V स्क्वायर इज मैक्सिमम
implies v is maximum। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम स्क्वेयरिंग करते हैं। मैंने आपको कहा था ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज बच्चे से ये सब निकला नहीं करते। जेड इज इक्वल टू, दो तरीके हम इस सम को दूसरे तरीके से करा रहे हैं। जब दो वेरिएबल्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन करके हम एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं कि फ्रॉम सेकंड से आपने सब्स्टिट्यूट करना है। पाई स्क्वायर R4, एस तो बाहर कॉमन ही है, यहाँ बाहर रख लेते हैं। एस माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर, सिंप्लीफाई एस R स्क्वायर बाय 9 एस माइनस 2 पाई R स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एस बाय 9 एस R स्क्वायर माइनस 2 पाई R4। अब यहाँ से डी जेड अपॉन डी आर ले लें। एस बाय 9 कॉन्स्टेंट है, 2s r 8 पाई r क्यूब, s इंटू 2r बाय 9 कॉमन, s माइनस 4 पाई r स्क्वेयर। लेट डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। This implies s is 4 pi r स्क्वेयर। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, डी स्क्वेयर जेड बाई डी आर स्क्वेयर, 2s बाय 9 बाहर कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव सेम होगा, जिसकी वैल्यू पुट करने पे ये 0 आ जाएगा, प्लस r माइनस 8 पाई r विच इज नेगेटिव। This implies the volume is maximum। लेकिन जो रेड पेन वाला प्रूव करना है, फ्रॉम फर्स्ट एस की वैल्यू पुट कर लो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वेयर। This implies L is equal to 3R. This implies 1 by 3 is equal to R upon L. तो sin alpha is equal to 1 by 3, alpha is equal to sin inverse 1 by 3। तो इस क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखो मैंने इसको सेकंड मेथड से लिया, मतलब ये भी एक मेथड्स होता है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल R और H, इसमें किसी एक की वैल्यू पुट कर लो। h की पुट करना इजी था, इसलिए मैंने इसको इस ढंग से सिंपल, लेकिन h था, अंडर रूट अवॉइड करना था, इसलिए स्क्वेयरिंग की है। तो z किसको रिप्रेजेंट करता है? v को। तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये मेथड आपको पकड़ना पड़ेगा। NCERT के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स में काफ़ी रहते हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस डेली इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इनके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करें। आज आपका ये 4 क्वेश्चनों का सेट है, इसको कंप्लीट करें।